الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم علامہ زاہد الراشدی صاحب، استاد محترم پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، حضرت مولانا محمد اسلم ضیائی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شہزاد اقبال شام صاحب، جناب ذوالفقار علی عباسی صاحب ایڈوکیٹ، حضرت مولانا خلیل الرحمن چشتی صاحب، جناب عبدالرشید صاحب، ڈاکٹر شاہ رفیع صاحب، اور اس مجلس کے میزبان جناب نصر اللہ خان رنداوا صاحب. میں اسلام آباد جماعت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر آج اس سیمینار کا انعقاد کیا اور مجھے اتنے بڑے لوگوں سے ملنے کا موقع فراہم کیا. علامہ زاہد الراشدی صاحب سے تو واٹس ایپ کے ذریعے سے رابطہ ہے اور ان کے پوسٹ آتے ہیں تو ہمیشہ میں ان سے کچھ سیکھتا ہوں. تو وہ ایک آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹ استاد ہیں، ٹیچر ہیں، مینٹر ہیں، سرپرست ہیں ہمارے. اور خلیل الرحمن چشتی صاحب ہمارے لیے ایک سورس آف انسپریشن ہے، ہمیشہ سے ہم نے ان سے سیکھا ہے. اور پروفیسر ابراہیم صاحب تو میرے امیر رہے ہیں طویل عرصے تک، اور انہی کی سرپرستی میں ہم نے اس کام کو سیکھا ہے. تو میں سب کا بہت مشکور ہوں. میں یہاں پہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ یہ موقع مجھے پہلی دفعہ مل رہا ہے اور مشکل ہے کہ اس طرح کے لوگ بار بار مجھے ملیں، جس میں وکلاء بھی ہوں، جس میں پروفیسر بھی ہو، اور جس میں میرے اتنے بڑے سرپرست بھی موجود ہوں. تو میں ڈومیسٹک وائلنس بل پر بھی مختصر بات کروں گا، لیکن کچھ اور اہم ایشوز کی طرف بھی اس مجلس اور خصوصاً اس مجلس میں جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں بڑے، ان کی توجہ دلانا چاہوں گا. دیکھیں، میں بڑی دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ میرا چوتھا سال ہے سینٹ میں، اور بالخصوص گزشتہ 1.5 سال سے جو قانون سازی ہو رہی ہے، تو اس کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کا پارلیمنٹ غلام ہے، غلام. پاکستان کا پارلیمنٹ اپنی آزادی کھو چکا ہے. وہ پارلیمنٹ جس کے پیشانی پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے، وہ براہ راست استعمار، سامراج اور ساہوکار اداروں کی غلامی میں جا چکا ہے. وہ پارلیمنٹ مکمل طور پر امریکن وائرس سے انفیکٹڈ ہے، مکمل طور پر امریکن وائرس سے انفیکٹڈ ہے. اور میں اپنے ان بڑوں سے کہتا ہوں، گیند آپ کے کورٹ میں ہے، آپ کو کچھ کرنا ہوگا، کچھ اجتماعی ایسی کوشش کہ حالات کو پلٹا سکے. یہ جو قانون سازی ہوئی اس پہ ڈومیسٹک وائلنس بل پہ، تو اس دوران میں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح بات آئی کہ بجٹ سیشن کے اندر، کہ جس میں بہت ہیوی سیشن ہوتا ہے اور عمومی روایت یہ ہے کہ اس میں کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، اور بجٹ سپیچز ہوتے ہیں، ریکمنڈیشنز تیار ہوتی ہیں حکومت کے لیے، اس میں انٹروڈیوس کیا گیا. پھر دوسری چالاکی یہ کی گئی کہ ہمیشہ 2 کاپیز دیتے ہیں، ایک انگلش کا، ایک اردو کا. اس دن اردو کی کاپی نہیں دی. یہ باقاعدہ انٹینشنلی ہو رہا ہے، منصوبہ بند انداز سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں پارلیمنٹ غلام ہے، پارلیمنٹ امریکن یورپین وائرس سے انفیکٹڈ ہے. تو اس حوالے سے میں صرف اتنا عرض کروں کہ دیکھیں، ڈومیسٹک وائلنس کے سب خلاف ہیں، اس پہ ایک کراس دا بورڈ ایک کنسنسس ہے. ہم چاہتے ہیں کہ گھریلو تشدد کی امتناع ہو،
घरेलू तशद्दुद का इंसदाद हो। ये जो स्वरा है, ये जो कारोकारी है, ये जो गैरत के नाम पे कत्ल है, ये जो तेजाब गर्दी है, किसी आलिम ने इसके हक में फतवा नहीं दिया है। उलमा की इसके खिलाफ फतवे मौजूद है। इस पे तो अक्रॉस द बोर्ड इत्तिफाक है। तो जब आप इत्तिफाक है तो फिर आप दीनी तबके को ऑनबोर्ड क्यों नहीं करते? जब आप ये कानून साजी करना चाहते हैं तो दीनी तबके को ऑनबोर्ड क्यों नहीं करते? और मैंने उनसे कहा है कि आप मौलाना जाहिदुर राशिदी साहब से ना पूछें, अपने लोगों से पूछे जो आपके सफों में दीनी तबका है, उनसे पूछें। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 31, आर्टिकल 227, ये आर्टिकल्स खुलकर कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। स्टेट रिलीजन इस्लाम है और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, करारदाद मकासिद हैं, वो हिस्सा है दस्तूर का। और कुरान और सुन्नत के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता। और हुकूमत का फर्ज होगा कि वो ऐसे माहौल आवाम को दे जहां वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। इसलिए यहां पे अगर आप सेकुलर कानून साजी कर रहे हैं तो आप कानून के नाम पर बहुत बड़ी लाकानूनियत का इर्तिकाब कर रहे हैं, बहुत बड़ी लाकानूनियत का इर्तिकाब कर रहे हैं। फिर आप देखें कि जहां बात आई, जहां जो बातें हुई हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आपका उस्ताद मगरिब है, अमेरिका है, जबकि आपका उस्ताद दस्तूर के मुताबिक कुरान और सुन्नत होना चाहिए। मगरिब के अंदर जो इज्तिमाई इकाई है वो एक है। वो बेचारे खो चुके हैं, हमें उनके साथ हमदर्दी है। एक इकाई है गवर्नमेंट की, इज्तिमाई इकाई, जो तरगीब और तरहीब करता है, तरगीब भी देता है, सरजनिश भी करता है, एहतिसाब भी करता है। वो एक है हुकूमत। हमारे यहां दो है अल्लाह के फजल से, एक हुकूमत है, एक खानदान है। छोटी हुकूमत खानदान, बड़ी हुकूमत इज्तिमाई निज़ाम, दो ही। जिस तरह हुकूमत के पास तरगीब व तरहीब का इख्तियार है, इसी तरह खानदान के सरबराह, जिस पे जनाब मौलाना खलील रहमान चिश्ती साहब ने कहा और कुरान सुन्नत से बताया, साबित किया, उनको पास भी ये इख्तियार है, एक हद के अंदर, एक पैमाने के अंदर। फिर आप इसमें आगे जाएं तो इसमें इब्तिदा में इस बिल के लिखा हुआ है, बिल्कुल इब्तिदा में आप जरा ये अल्फाज तो देख लें कि ये बिल हम क्यों ला रहे हैं। तो इब्तिदाइये में लिखा हुआ है, टू क्रिएट an ability environment to encourage and facilitate women, children, elders, and any vulnerable persons to freely play their desired role in society. Desired role. अब बच्चे का डिजायर रोल क्या होगा? बच्चा तो बच्चा है, उसका तायुन तो रोल का उसके वालिदैन करेंगे, उसके मां बाप करेंगे। आप उनको भी डिजायर्ड रोल देना चाहते हैं, वो तो वही होगा जो चिश्ती साहब ने कहा कि मुझे 20 लाख की गाड़ी दो, 40 लाख की गाड़ी दो, फिर उसमें से ड्रग निकलेगा। फिर इसमें हमने उनसे कहा कि आप डोमेस्टिक, मैंने तो सेनेट में भी कहा, देखें डोमेस्टिक वायलेंस में मैं आपके साथ हूं, इसके खिलाफ हूं, लेकिन आप, मैंने उनसे कहा, यहां भी कहता हूं कि मैं चीन गया था तकरीबन चंद साल पहले। तो मैंने कहा कि मैं चीन में माओ जे तुंग का नाम सुन रहा हूं, नहीं सुन रहा, और डिंग जियाओपिंग का नाम सुन रहा हूं, तो ये क्यों है? तो मुझे कम्युनिस्ट पार्टी के एक लीडर ने कहा कि यहां डिंग, जदीद चीन का बानी डिंग है, माओ नहीं है। इसलिए नहीं है कि माओ ने हमें आजादी दी इस्तेमार से, लेकिन गुर्बत से आजादी नहीं दी, और डिंग ने हमें गुर्बत से आजादी दी। और माओ इसलिए नाकाम हुआ कि वो चाइनीज प्रॉब्लम के लिए रशियन सोल्यूशन ढूंढ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे पाकिस्तानी प्रॉब्लम्स के लिए यूरोपियन सोल्यूशन ना ढूंढो,
अमेरिकन सोल्यूशन ना ढूंढो। हम आपसे ये कहते हैं कि आप ये काम करें, कुरान और सुन्नत, अपने अकीदे, अपने अक़दार, अपने रवायात और अपने कल्चर के फ्रेम में, तब आप कामयाब होंगे। फिर मैं इस पे ज़्यादा तफसील से नहीं जाता, इसलिए कि सारी बातें तकरीबन आई हैं। एक चीज़ तो यह है कि देखें, इसमें मसालेहत का जो पहलू है वो मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज है। मुकम्मल तौर पर एक लफ्ज़ ये नहीं है कि अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो एक ऑप्शन मसालेहत का भी है। ये तो सिरे से है ही नहीं। जुदाई, सेपरेशन, टोटल कंसंट्रेशन उसके ऊपर है। हालांकि इस्लाम जो है वो अदालत में जाने से पहले भी मसालेहत का मौका देता है। तो एक तो बड़ी खतरनाक जो चीज यह है कि इसमें मसालेहत नहीं है। जब एक दफा शिकायत हो गई फिर सेपरेशन होगी, फिर तादीब होगी, फिर इक़दामात होंगे। फिर ये जो उन्होंने कहा, देखें क्लास 2 सब क्लास 7 में घर जिसकी तारीफ की गई है, ये बड़ी आसानी से समझ आने वाली चीज़ है। घर क्या है? घर वो बिल्डिंग जिसके हाथे में आप रहते हैं, खा वो आपका अपना मलकियती है या किराए पे है। ये क्लास 2 सब क्लास 7 में। डोमेस्टिक रिलेशनशिप या घरेलू ताल्लुक, ये क्या है? क्लास 2 सब क्लास 5 में है। वालिदैन, औलाद, बहन भाई, रिश्तेदार, मुतबन्ना, सुतेला, मुलाजिम, सब आ गए हैं। फिर आप देख लें तीसरा, एग्रीव्ड पर्सन, बच्चा, औरत, मर्द, बड़ा, कोई भी शख्स। अब आप देखिए, घर ये है, घर के अफराद ये हैं, और जो एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासिरा शख्स हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। किस चीज से? डोमेस्टिक वायलेंस से। डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक अब्यूज। देखिए, कानून की सबसे बड़ी खुसूसियत यह होती है